ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। भले हम एक दूसरे से दूर थे तो क्या हुआ, बट ये फील होता था कि कहीं ना कहीं तो है। जी। बट ये जानने के बाद तो अब ऐसा लगने लग गया कि यार इसलिए हमने शादी की थी कि एक दिन बाद ये कभी मुझे एक टाइम में धोखा देके मुझसे चला जाएगा। तकलीफ बहुत होती है बिकॉज ये दिन के लिए तो एटलीस्ट शादी नहीं किया था। ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? जी जी बताइए। शादी का प्रपोजल साजन की तरफ से था मुझे। अच्छा, ये लव मैरिज है? हाँ जी, लव कम अरेंज है हमारी। ਤੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं, पहली बात तो मैं अपने रिश्तेदारों में तक बैठना मुझे मना था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? मतलब अपने लोगों के साथ ज़्यादा बात करने नहीं देना और मतलब किसी के साथ बहुत उठना बैठने नहीं करने देना। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि यार कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उनके साथ उठ बैठ नहीं सकती या मैं उनके साथ बात नहीं कर सकती क्या। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ? मैम मैंने कभी अपने मम्मी पापा को लड़ते नहीं देखा, कभी गाली नहीं सुना। जी। तो मुझे इन सारी चीज़ों की कभी आदत ही नहीं थी। मतलब कभी भी कुछ भी बोल देंगे, मुंह उठा के गाली दे देंगे, तो वो मैं हर बार टॉलरेट नहीं करूँगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਇਦਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਨੂ, ਟਾਈਮ ਹੈ, निकल जाएगा, मैं तेरे नाल हाँ? इनिशियल था, लेकिन उसके बाद उसका भी बिहेवियर बहुत रूड हो गया मेरे लिए, एकदम क्रूअल सा बिहेवियर होगा उसके बाद उसका। तो अब लोग जो खुद घर में घर बड़ों को बुला के रोटी खिला के पीठ पीछे गाली बकते, तो उनसे मैं क्या उम्मीद रखूंगी कि वो मेरा घर संवारेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਲਵ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? कभी नहीं मैम। उसको पता था जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम 2.5 महीने जब मुझे छोड़ के चला गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਐਂਡ ਸਾਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਸਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਨੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? तब तो फिर भी ऐसा था मैम कि वो है, भले हम एक दूसरे से दूर थे तो क्या हुआ, बट ये फील होता था कि कहीं ना कहीं तो है। जी। बट ये जानने के बाद तो अब ऐसा लगने लग गया कि यार इसलिए हमने शादी की थी कि एक दिन बाद ये कभी मुझे एक टाइम में धोखा देके मुझसे चला जाएगा।
मेरा हम्म। मुझसे सब कुछ छीन लेगा। जी। मतलब तकलीफ बहुत होती है बिकॉज़ ये दिन के लिए तो एटलीस्ट शादी नहीं किया था। ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ जी, मर्ज़ी से ही हुआ था तभी तो हमने शादी की, अगर नहीं होता मर्ज़ी तो फिर तो शादी होती ही नहीं हमारी। और नहीं हालाँकि मेरा जी जी बताइए शादी का प्रपोज़ल साजन के ही तरफ से था मुझे। अच्छा ये लव मैरिज है हाँ जी, लव कम अरेंज है हमारी। ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ वो यहाँ से होके अंगुल जाता था अपने बिज़नेस के पर्पज़ से, तो जी भूषण स्टील प्लांट में उसका काम था। हम मिलते थे मतलब कभी जैसे वो यहाँ होके जाना और इन केस कभी मेरी तबीयत खराब है या कुछ है तो उसका जो केयर करना था, मेरे साथ अच्छे जी से रहना था, ये सारी चीज़ें मेरे को उसकी अच्छी लगती थी। हम्म मतलब मुझे कैसा भी सिचुएशन हो, मैं कितना भी टेंशन में रहूँ, जब भी मैं उसे कभी कुछ बोलती थी तो मुझे अच्छे से समझाता था। जी दो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, उसने कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं होने दिया। हमेशा चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, वो मेरे साथ हमेशा फ़ोन पे रहा है, मुझसे हम्म बात किया है और वो मुझे मतलब सपोर्ट करता रहा उन चीज़ों से, टेंशन से, चाहे कैसी भी टेंशन हो, उन चीज़ों से निकलना। जी ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਾਈਟ हाँ जी। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ कपल ਦਾ स्टार्टिंग तो अच्छा था मैम, कुछ जी टाइम तक। बस उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऐसी चेंज हो गई कि मेरे भी समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। ਅਨੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ एक्चुअली फैमिली की वजह से ही साजन के बिहेवियर में भी चेंजेस आया था ओके और मतलब मुझे नहीं पता था कि मतलब भाभी का बिहेवियर बहुत वियर्ड रहेगा जी और वो मुझे कभी पसंद ही नहीं करेंगे। ये तो मुझे पता ही नहीं था। बट उनके हिसाब से जी बहुत कुछ मैंने मैनेज कर लिया था उस घर पे, ढल गई थी उनके हिसाब से। जी लेकिन फिर भी उनको पता नहीं किस बात का क्या था मुझे नहीं पता। अगर साजन उनकी बात ना माने तो अरे तान्या सिखाती है ये सब। मैंने क्या सिखाना उसको? वो खुद इतना बड़ा है, क्या करना है, नहीं करना है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकता है। जी तो मैं क्यों बिल्कुल सिखाने जाऊँगी साजन को? ਜੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, इन्वॉल्वमेंट था तभी तो यहाँ तक पहुँचे थे हम। तभी तो मैं ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ज़ीरकपुर रहने आई थी। ਤੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं, पहली बात तो मैं अपने रिश्तेदारों में तक बैठना मुझे मना था। मुझे अपने ही हम उम्र के वालों के साथ भी उतना बैठना उठना मना था। मैं तो घर से नहीं निकलती थी। मुझे तो कुछ टाइम तक घर से ही नहीं निकाला गया। मतलब मैं खुद भी जिद नहीं करती थी। फिर ਜੀ धीरे से मुझे 22 का मतलब मार्केट और वो साईं मंदिर तक पता था। बस इतना ही जाना होता था। इससे ज्यादा मैं कहीं नहीं निकलती थी। ना निकलने मिलता था मुझे। ਅੱਛਾ ਅਨੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ मुझे इस घूमना तो नहीं बट हाँ मतलब अपने लोगों के साथ ज्यादा बात करने नहीं देना और मतलब किसी के साथ बहुत उठना बैठने नहीं करने देना
तो वो जी, चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि यार कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उनके साथ उठ-बैठ नहीं सकती या मैं उनके साथ बात नहीं कर सकती क्या? जी। सो ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਨੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ? बात तो कुछ नहीं होती थी, हम रोटी से जैसे हम घर आए थे एक दिन बुआ के यहाँ से, तो जस्ट जी, नॉर्मल एक छोटा-सा ऐसे हम रेस करते हैं ना गाड़ी, तो भैया दूसरी गाड़ी में थे और हम दूसरी गाड़ी पे थे, तो भैया पहले जी, पहुँच गए। जस्ट एक मतलब कुछ था ही नहीं लड़ने के लिए, बस उस बात को लेके चालू हो गए, तूने अपनी बीवी को आइसक्रीम लाके दिया, हम लोग के लिए नहीं लाके दिया। तू हम्म, ये, तू वो करके मेरे साथ 4 बजे तक साजन और मेरे साथ 4 बजे तक लड़े थे। जिसमें जी, मेरी मम्मा को भी इन्वॉल्व कर लिया, मतलब पीछे से उनको भी गाली बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर दिन मतलब कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, चलते ही रहता था। और उस जी, दिन ऐसा हो गया, वो इतना ज़्यादा मतलब एस्केलेट हो गया कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब नहीं रहना है। मतलब एटलीस्ट ऐसे माहौल में तो नहीं रहना है, क्योंकि मैंने कभी अपने मम्मी-पापा को लड़ते नहीं देखा, कभी गाली नहीं हम्म, सुना। जी, तो मुझे इन सारी चीज़ों की कभी आदत ही नहीं थी। मतलब राइट। कभी भी कुछ भी बोल देंगे मुँह उठा के, गाली दे देंगे, तो वो मैं हम्म, हर बार टॉलरेट नहीं करूँगी ना। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਏਦਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਨੂ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, मैं तेरे नाल हाँ? इनिशियल था, लेकिन उसके बाद उसका भी बिहेवियर बहुत रूड हो गया मेरे लिए, एकदम क्रूअल सा बिहेवियर हो गया उसके बाद उसका तो। हम्म, क्योंकि कुछ टाइम अच्छा था, पता नहीं उसको क्या हो गया। हम जब वहाँ से इधर आए और समझाने के लिए, तो सबसे पहली बात तो बड़े हैं ही नहीं, मेरे सास-ससुर हैं ही नहीं। मेरे बड़े तो भैया-भाभी ही हैं वहाँ पर। जी, अब लोग जो खुद घर बड़ों को बुला के रोटी खिला के पीठ पीछे गाली बकते हैं, तो उनसे मैं क्या उम्मीद रखूँगी कि वो मेरा घर सँवारेंगे, जिन्होंने मेरा घर ही तोड़ दिया। जी। आई एम श्योर अनु, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵਾਲੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਲਵ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? कभी नहीं मैम। 2015 में वो मैं जब उसको उसके घर वाले बुला लिए थे, मतलब एकेडमी वगैरह सब खोल के दिया, सब कुछ किया मैंने, ज़मीन बेचा, मतलब एक औरत जितना, एक माँ जितना कर सकती है अपनी बेटी का, सब कुछ किया। हम वापस आ गए। ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਲਈ? कमिटमेंट नहीं, जब हम वहाँ छोड़ के जब हम वापस यहाँ आए थे, जी, तो ऐसा था कि कहीं न कहीं साजन को स्टैंड होना था, स्टैंड करना था। हम्म, अब मैं ही उसकी लाइफ में हूँ करने वाली, क्योंकि उस टाइम तो कोई था नहीं, तब तो हम यहाँ आ गए थे। तो फिर जी, कौन करता उसको? कौन सपोर्ट करता? कोई सपोर्ट के लिए था नहीं। तो जी, मैंने उसने बोला कि मुझे एकेडमी खोलनी है, मुझे ये करना है, तो मैंने बोला ठीक है, हम करा हम्म, देते हैं। सब कुछ अच्छा जी, चला मैम, पैसा लगा दिया उसके पीछे, सब कुछ कर दिया। पता हम्म, नहीं ऐसा क्या हुआ, ये अपने घर वालों से मतलब बात करता था, लेकिन किससे क्या बात करता था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये मुझे मेरे घर में छोड़ के वो यहाँ एकेडमी में रहता था। हम्म, मैंने बहुत बार बोला, जिस भी हाल में तू रहेगा मैं तेरे साथ रहूँगी। मैंने हम्म, इसलिए शादी नहीं की कि तू मुझे मेरे घर पे छोड़ दे और तू यहाँ एकेडमी में रहे, आना-जाना वो करता था। तो हम्म, मैंने कहा मैंने तेरे साथ रहना है, इसने उसने साफ इनकार कर दिया और अपने घर वालों को ये कहा कि वो तो अपने घर में रहती है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये अच्छा, सब उसने ये बोला। मुझे कहते कि तुम लोग वेकेशन मनाने गए हो क्या? मैं जी, भैया को बोला कि भैया हमने वेकेशन तो मनाने नहीं गए हैं। हम्म, तो तुम इधर रहती हो तो वो उधर रहता है। मैं बोली आपका भाई ही मेरे को अपने साथ नहीं रखता। आप मुझे जी, क्या सुना रहे हैं? आप अपने भाई को बोलो, वो नहीं रखता। मैं तो हर हम्म, इसमें रेडी हूँ उसके साथ रहने के लिए। जी, ऐसे ही था, फिर उसको क्या झूठ बोल के घर में बुलाया।
हार्ट अटैक आ गया भैया को, ये कह के भैया लोगों ने इसे बुला लिया वहां। तो जी। उसने मुझे भी कहा, लेकिन मुझे कुछ काम था इसीलिए तब मैं इनिशियल स्टिचिंग स्टार्ट करी थी। तो मेरे पास कुछ ओके। काम थे, तो मैंने बोला कि मैं अभी नहीं, मेरे को 2 दिन बाद टिकट करा के बुला लेना, जैसा भी सिचुएशन होगा। जी। फिर मैंने इससे पूछा पहुंचने के बाद, क्योंकि मेरे देखो फैमिली मेडिकल से बिलोंग करती, तो ऑब्वियसली जब उनको हार्ट अटैक आया है, सारी चीजें हैं, तो मैं ईसीजी से लेके मैं सब उनका रिपोर्ट पूछूंगी। हम्म। वो मेरे से लड़ने लग गया कि तू सोच रही है हम झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने बोला तो ईसीजी रिपोर्ट तो बता दे मुझे क्या हुआ, कुछ तो हम्म। बोला होगा डॉक्टर, कुछ तो आया होगा। कुछ नहीं, वो बिल्कुल। सिर्फ एक एसिडिटी का जो पेन होता है ना, यहाँ तक जो पहुंच जाता है, गैस जो होता है यहाँ तक जी। पहुंच जाता है ना, जी। बस वही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जी। वो दिन बुलाकर साजन का जो ब्रेन वॉश किया इन लोगों ने, ऐसा हम्म। ब्रेन वॉश किया, 1 महीने तक ये लड़का मेरे पास नहीं आया, ना मुझसे बात किया, मुझसे एकदम उखड़ा उखड़ा बात करता था, मेरा कॉल रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। हम्म। बहुत मिन्नत करने के बाद आया। 2.5 महीने जी। में प्रेग्नेंट थी, और ढाई हम्म। महीने प्रेग्नेंट के बाद में वो आया, सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया, गाड़ी लिया और वो हम्म। यहाँ से बोला तू अपना ख्याल रखना, और चला गया। जी। उसके बाद से उसको पता था जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम 2.5 महीने जब मुझे छोड़ के चला गया, उसके बाद से उस लड़के ने कभी मेरे से बात नहीं की। उसके घर वालों ने इतनी गालियां निकाली, इतनी गालियां, इतना झूठ, ये बस स्टैंड में सोता है, ये तो मुझे भाभी कहती है, तो मुझे मार के चला हम्म। गया। मुझे हर एक इंसान ने गाली दी, ऐसा कौन इंसान नहीं होगा जिसने मुझे गाली नहीं दिया होगा, हर एक इंसान ने मुझे गाली दी। पर एक गुस्सा, एक गाला, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਅਨੂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ये तो वो ही बता पाएंगे ना मैम, मैं क्या बताऊंगी। मैंने तो कभी उनका बुरा नहीं किया, कभी पलट के उफ तक नहीं किया। सबसे मतलब लुधियाना वाली चाची सास से लेके हर किसी का, जिसका जिसका नंबर था, सबके हाथ जोड़े, सबके आगे हाथ जोड़े कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज उसे बोलो मेरे से बात करे, मुझे बात करे। मेरी प्रेगनेंसी पूरी ऐसे ही थी, सिर्फ टेंशन भरी ਇਸੀ प्रेगनेंसी ਟੈਨਸ਼ਨ। थी। तो कभी भी सास वालों ये नहीं पूछा गया कि अमन तू प्रेगनेंट है, मेडिसिन की जरूरत या किसी भी तरह की, हालांकि ਤੁਹਾਡੇ किसी भी फैमिली मेंबर्स नहीं, नेवर। फिर जो ਤੁਹਾਡੀ बेटी हो गई, उस दिन बस आया था, उसके बाद वो हम्म। चला गया, उसको कोई कहीं कोई मतलब नहीं मैम। उसके बाद भी हार्डली वो मुझसे कुछ दिन बात किया होगा। हम्म। उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। उसके घर वालों की तरफ से भी कुछ नहीं था। मतलब एक जो हम्म। रिस्पॉन्स होता है ना कि अरे ये तो मतलब मेरे छोटे भाई की ही तो बहू है, उसकी उसकी जी। बेटी हुई है, कहीं कुछ नहीं, ਤੇ कहीं कुछ ਭਈਆ नहीं, ਭਾਬੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? कभी भी नहीं। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਾਸ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ये जब मैं वापस जीरकपुर आई थी, मुझे वापस बुलाए थे, इतना बोलने करने के बाद जब इन्होंने वापस बुलाया था मुझे, जी। तब की है वो। 2016 15 अगस्त की है वो फोटो, मतलब वहां ओके। जाने के बाद की है, मतलब वही। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਗੁੱਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸੀ? नहीं, नहीं, हम दोनों बेटी। बीमार पड़े हुए हैं, माँ बेटी, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, पूछना नहीं। जब एक दिन बहुत तबीयत बिगड़ गई, तब जाके वो हमको हॉस्पिटल लेके गया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, पूछना नहीं, कहीं कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। हम दोनों बैठे हैं, वो अपना मोबाइल में लगा हुआ, कोई मतलब नहीं है कि बीवी बैठी है क्या नहीं। जी। उसका बिहेवियर इतना रूड, इतना क्रूअल बिहेवियर मेरे साथ। ਜੀ, ਸਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? बेटी को तो नहीं, उसने मेरे पर हाथ उठाया। ऑब्वियसली मैम, हम साथ में मियाँ बीवी बैठे हैं, मेरे से बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं गुस्से में बोलूंगी कि हम क्या जी। कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, इतना फोन में क्यों लगे हो। मेरा बिल्कुल। गुस्सा मुझे क्यों नहीं आएगा, हम साथ इकट्ठे खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, तू बोल रहा अब आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, पहुंचा नहीं, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली होगा, मुझे गुस्सा होगा कि हम एक साथ रह के, एक छत के नीचे रह के, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ਅਨੂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मुझे doubt ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, साजन और अफसाना की एक इंटरव्यू में अफसाना ने एक चीज कहा है
हिमांशी खुराना ने इंटरव्यू लिया था उनका, उसमें उसने अफसाना से पूछा साजन की 2 बुरी आदतें बताओ, जिसमें पहली जी। बात उसने बोला था साजन बहुत झूठ बोलता है। ओके। और ओके। रियली साजन बहुत झूठ बोलता है। उसकी खुद की जो अब होने वाली है, उस वो कह रही है कि ये बहुत झूठ बोलता है, तो फिर क्या बात है? मैं क्या बोलूँ? वो तो झूठ ही बोलता है और शुरू से उसने मेरे से झूठ ही बोला है। कभी जी। सच जी। नहीं बोला उसने मुझे। ਹੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? कभी नहीं। नेवर। ਨੈਵਰ। जब हम उसके घर में मैं, बुआ, मेरी बेटी हम गए थे, यही कहने जी। मई में जब 17th मतलब अलग होने के बाद मई में जब गए थे 17 में ही, तो जी। उसने उसको देख के गोदी तक नहीं उठाया। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ये वाली पिक्चर तो जब मैं 15 मतलब 16 अगस्त 15 में 2016 में जब गई थी, उससे जी। जनवरी के बीच की वो फोटो है, जब हाँ मैं जी। वहां ਹਾਂਜੀ। थी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਕੁਝ ਵੀ? नहीं, अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं कह दूं कि साजन आप पकड़ लो, तो वो पकड़ लेता था बच्ची को। अदरवाइज मैं हम्म। उसको वॉकर में बांध कर मैं अपना जी। काम जी। करती थी। ਅਨੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ? नहीं था सिक्योर और मुझे तो बहुत तकलीफ होने लग गई थी मैम, कि मैं ये क्या जी। जिंदगी जी रही हूँ। हमने क्या सोचा था, क्या सपना देखा था, और आज हमारे बीच क्या हो रहा है। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? हाँ जी। ਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ? मैं सेकेंड ईयर करके मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पापा नहीं है, और जी। जी। उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब सिचुएशन भी उतना ठीक नहीं था, और हम्म। जिस भी रीजन से मैंने प्राइवेट दे के अपना किया। बट उस टाइम मैं जॉब करने निकल गई थी, तो जॉब और पढ़ाई के बीच में टाइम नहीं होता था मेरे पास, जी। तो जी। इसीलिए मैंने सेकेंड ईयर पे ही ड्रॉप कर दिया था अपनी स्टडी। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਨੂ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈ ਮੀਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। पूछते हैं मैम कि इसके पापा कहाँ हैं, क्या है। कई बार स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इसको लेने जाना करना, तो कई बार जी। पूछते हैं कि इसके पापा कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है वो चंडीगढ़ में रहते हैं, अपने काम में हैं। मैं क्या हम्म। लोगों को तो ये हर बात तो नहीं बोल सकती ना, हर किसी को तो नहीं जी। बता जी। सकती ना मेरी जिंदगी में जो चल रहा है। ऑलरेडी और इतनी ਤੁਸੀਂ खिल्लियां तो उड़ चुकी है। ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅਨੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਸਟ ਸੀ? ਅਨੂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मेरे को तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जब इन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं हमें तो साथ रहना ही नहीं है। जी। ਜੀ। उस टाइम तो ऐसे ब्लैंक था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं उस चीज से ਤੇ ਅਨੂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ, ये उम्मीद तो थी मैम, ये उम्मीद जी। थी मेरे को। भले कितना भी झगड़ा हो गया हमारा, जो भी कुछ हो गया, उन लोगों ने कितना भी बुरा बिहेव किया हो, कितना क्रुएल्टी दिखाया हो, बट कहीं ना कहीं एक उम्मीद अपने पति से पत्नी को होती है। ਸੋ ਓਕੇਜਨਲੀ, ਜੀ, ਓਕੇਜਨਲੀ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ? नहीं, कभी साजन ने विश नहीं किया। बहुत ओकेजनली मैं कॉल करती थी भैया भाभी को, उनका कभी मेरे पास कॉल नहीं आया। जी। जी। और बीच बीच में हमेशा मतलब कुकू भी कहती थी कि मुझे बात करनी है पापा से, तो उसने फोन लगाया था, तो साजन का ये रिप्लाई, आप कौन, मैं आपको नहीं जानता। अपनी बेटी के लिए वो आदमी ऐसा बोलता है। जी। ਜੀ। ਸੋ ਕੁਕੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ?
हाँ जी, घर पे कुक्कू बोलते हैं उसको एंड उसका ओके। ओरिजिनल नेम निष्ठा है। सो निष्ठा पहचानदी है सास ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। हाँ जी, उसको पता है। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। पता है उसको उसके पापा ने क्या किया है और ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। हाँ, उसको बहुत समझ है मैम, वो बहुत समझदार है। मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी जिस हिसाब से निकाली, उस हिसाब से मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो समझदार होगी। जी जी। अब वो देख रही है, हम ही सब कुछ करके दे रहे हैं उसको, हालाँकि उसको कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं हुई। हम कभी उसको महसूस होने ही नहीं दिए, मैंने तो कभी भी नहीं ख़ासकर। जी जी। क्योंकि मैं ही आज उसका बाप हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ उसके लिए और आगे तक मेरे से जो होगा मैम, मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। जी क्योंकि जी। साजन एक पिता हो के उसको कभी ये नहीं लगा कि यार मेरी बेटी है तो मुझे कभी पूछ लेना चाहिए। मतलब इतना कठोर दिल मैम किसका होता है? मुझे बताइए ना, जो कभी अपनी बेटी को ही ना पूछे। ਸਾਸ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ नहीं आई। एक्चुअली साजन अपनी सोशल साइट मीडिया में मुझे ब्लॉक करके रखा है और जी मुझे कभी इस इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कदम उठा लेगा। तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में मैं ना एक्टिव रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा देखती भी नहीं थी उसे। जी जब तक मैंने उसको देखा तब तक ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ रहने हो ਕਿਸੇ? कैसे नहीं, 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 धमतरी में रहते हैं। ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? मुझे पहले तो नहीं पता था, बाद में पता चला, जब सारी चीज़ें मैंने देखा कि वो कौन है। ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਸਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਹਾਓ। ਅਨੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये सब के लिए तो मेरी बुआ है, जैसे फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना है वो कर रही है और एल्स मेरे एडवोकेट हैं वहाँ पे जो देख रहे हैं केस, जी ਜੀ वो मुझे गाइड कर रहे हैं। जी ਜੀ। अनु जी ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैम वो कैसी भी लड़ाई, आज मेरी बेटी है, मेरी बेटी के लिए मुझे वो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी ना। हमारी जी। लाइफ, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई यहीं, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बहुत है, मेरे को उसके लिए लड़ना है और मैं जरूर लड़ूंगी इस लड़ाई को। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਵੇ? हाँ जी, लेना चाहिए, उसकी बेटी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जो आज तक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कभी पूछा ही नहीं उसको। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੌਬ ਵਗੈरह ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? जब वो टाइम आएगा मैम तो भी तो वो करूंगी, जरूर करूंगी मैं जब वो टाइम आएगा तो। लेकिन जब तक जी मैं जी। अकेले जो कर सकती हूँ आज मैं करूंगी। मैं इस लड़ाई को जरूर लड़ूंगी मैम, क्योंकि आज मेरी बेटी है, हमारा करने वाला आगे पीछे कोई नहीं है। साजन ने जी तो जी। हमें बर्बाद कर दिया, पूरा रोड में लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद वो पूछ ही नहीं रहा। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ऑलरेडी वी लॉस्ट इट। जब वो छोड़ के यहाँ से भाग के चला गया था, उसके बाद हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ना कुछ मिला, ना कहीं कुछ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ? हाँ जी, वो म्यूजिक एकेडमी था, स्टेप्स इन रिदम। ਅੱਛਾ ਅਨੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਨੂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੱਲੋਂ?
नहीं। ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? भैया से मेरी सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे बात हुई थी। ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੀਨ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ, वो मुझे कहते तू अपना बच्चा दे दे। मैं अपना बच्चा, मैंने कहा मैं 9 महीने पेट में इसलिए थोड़ी रखूं कि मैं आपको अपना बच्चा दे दूं, जिसने कभी वेरी पूछा ही ट्रू। नहीं उनको। मैं उनको बच्चा किस बेसिस में दूंगी? और वो जब आपका भाई किसी और के साथ औरत के साथ रह रहा है, उसके बाद आप मुझे कह रहे हो कि तुम इस घर पे आके रहो, क्यों? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, हाँ, वो किसी और के साथ किस रहता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? मैं तो पहली बात तो कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, मैं अपना बच्चा तो दूंगी नहीं मैम। वो जी, मेरी जी। जिंदगी है, वो मेरा स्ट्रेंथ है आज की डेट में। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ? नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं कहा मैम। वो इतने बड़े हैं कि चीजें समझ सकते हैं, मुझे उस चीज को बोलना चाहिए क्या? जब से बच्चा या हुआ और सारी चीजें, सारी सिचुएशन पता है उनको, उसके बाद ਔਰ भी ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपने ਕਿਹਾ मुंह ਕਿ से ਸਾਸ ਕਿਸੇ बोलूंगी। ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ मैंने नहीं, मैं उस टाइम मैंने उनको पूछा, लेकिन अच्छा, उन्होंने तो बोला मुझे दी- नाम नहीं पता, अच्छा मुझे तो नाम नहीं पता। और बोले मुझे जब तू जी। आ जा, मैंने टिकट भी कराई जाने के लिए, ठीक है। जी। और उसके बाद साजन की तरफ से, उनसे ही मेरे को पता चला, भैया से, साजन की तरफ से, कि मैं उसको रहना ही ਪਰ ਦੋ ਸਦਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਾਈਫ ਫੇਕ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੈलेंजिंग। मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं है और मुझे करना ही नहीं है मैम। तभी तो मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ी हूँ ना, कि उसने किस बेसिस में मेरे को एक्स पार्टी किया। मुझे तो कभी सम्मान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, मेरा एड्रेस मेंशन गलत किया, उसमें शादी का डेट भी गलत मेंशन किया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर तुम इतना धोखा कैसे किसी के साथ कर सकते हो? आप किसी की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हो? वो भी एक लाइफ नहीं, दो लाइफ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਆਈ ਮੀਨ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? देना ही नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ? और मेरे में तो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? मुझे नहीं लेना था डाइवोर्स, मैं क्यों लूं? मैंने डाइवोर्स देने के लिए ਸੋ शादी ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी ਲੱਗ ਰਿਹਾ की थी ਸੀਗਾ उससे। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। कनेक्शन तो था ही, बट अब जब पता चला कि सारी चीजें सब बिगड़ ही चुकी है, तो फिर तो कनेक्शन का कोई नाम ही नहीं है ना। तो फिर कोई इंसान आपके साथ लाइफ में आपके साथ इतना गलत कर रहा होता है, इतना गलत कर रहा होता है, आप कैसे उसको कभी माफ कर सकते? एक टाइम तक ना, कभी तो औरत कभी तो कुछ तो बोलेगी, कुछ तो ਸਾਜ਼ ਦਾ करेगी। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਨੂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ करनगे, निष्ठा ਨੂੰ? जब तक मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, तब तक तो मैं सोच ही रही थी। लास्ट जब भैया ने भी मुझे बोला था, तो शायद मुझे एक थोड़ा सा 1% का मुझे लगा था, बट उसमें भी उनका उसमें झूठ छुपा था कि वो उस लड़की को जान के भी उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता। दैट वाज वेरी पेनफुल कि मतलब आप लोग इतना झूठ बोलते हो किसी से। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ? ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ जी, कर लिया है। कल तो उनकी सुनवाई है, उनको बुलाया गया है। जी। देखिए So, क्या होता है।
पर इतना है मैम, ऊपर जी, वाला ही है जो भी करता है। साजन ने 2 जी। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, ऊपर वाला हुँ, उसको उसके हिसाब से उसको देगा। हुँ। उसके बिहेवियर, उसके घर वालों ने जो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना, ऊपर वाला भी कहीं न कहीं उसका जी, हिसाब कहीं तो लिखा होगा। मैं इतना जी। स्ट्रॉन्गली बिलीव करती ਸੋ हूँ। ਅਨੂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, जो ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ होया है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैम, मुझे तो अब कुछ नहीं कहना है, बस जो हो अच्छा हो, बस इतना रिक्वेस्ट है और बस यही बोलना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हो, जी, जो भी हो। जी। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਬੀ ਸੇਫ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।